تعلیم اور ٹیچر اور استاد اور نصاب اس کا بہت بڑا کردار ہے. یہ چاہے تو مشرقی اور مغربی پاکستان کو علیحدہ علیحدہ کر اور یہ چاہے تو آپ کو یونائٹ کر دے. اور جو لوگ جتنا تعلیم میں پیچھے ہیں اتنا وہ ترقی میں پیچھے ہیں. ہسٹری کے اندر کوئی ایک ملک، کوئی ایک معاشرہ، کوئی ایک قوم یا کوئی ایک مذہب وہ آپ مجھے ایسا دکھا دے جنہوں نے بغیر تعلیم کے ترقی کی. چار چفیرے ہم دینی لوگوں کے اندر رہتے ہیں، وہ دنیا سے نابلد ہیں. اور مجھے یہ بھی تجربہ ہے کہ دنیا والے لوگ دین سے نابلد. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے کانشیسلی یا انکانشیسلی یہ غلطی کی ہے اور یہ ظلم کیا ہے کہ ہماری قوم کو بہت محدود کر دیا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ کتنے لوگوں کو ہم دین سکھا رہے ہیں؟ سر جسٹ 1%. آپ سر نام لیں دنیا کے کسی علم کا، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو ثابت کروں گا یہ قرآن پاک میں موجود ہے. 70,450 علوم قرآن پاک سے ڈرائیو کیے گئے. قرآن پاک میتھمیٹکس کی سب سے بڑی کتاب ہے، کیمسٹری کی سب سے بڑی کتاب قرآن پاک ہے. کیا یہ بات لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ نیوٹن کے 3 لاز جو ہے وہ سارے کے سارے قرآن پاک سے لیے گئے؟ کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بایولوجیکل سائنس کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے؟ کیا لوگوں کو اس بات کا پتا نہیں ہے کہ کیمسٹری کی ساری بنیادیں قرآن نے دی ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ہمارا کام اپنے بچوں کو اپنی ہسٹری پڑھانا بھی ہے، ہمارے بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا بھی کرنا ہے کہ بیٹا یہ ساری آپ کی میراث ہے. جب میں اسلام کا لفظ بولتا ہوں تو اسلام سے مراد میری سارے آسمانی مذاہب ہے. کرسچینٹی بھی اس میں آتی ہے، اس میں جوئزم بھی آتا ہے، اس میں تورات بھی آتی ہے، انجیل بھی آتی ہے. یہ سارے کا سارا اسلام ہی ہے. ہم نے لوگوں کو قرآن سنایا ہے لیکن ہم نے لوگوں کو قرآن سکھایا نہیں. ہم نے لوگوں کے مکان بچائے، ہم نے لوگوں کی جان بچائی، اور ہم نے لوگوں کا ایمان نہیں بچایا. سر عتیق اللہ عمر میرا نام ہے. تعلق بنیادی طور پہ میرا تعلیم کے ساتھ ہے. 7 مختلف سبجیکٹس جو ہیں اس میں میرا ماسٹر ہے. اسلامک سٹڈیز میں میرا ایم فل ہے اور اسی میں پی ایچ ڈی چل رہا ہے. میں آپ کے پنجاب یونیورسٹی سے لاء میں بھی ڈپلوما کر رہا ہوں جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل لاء ہے. میں نے مختلف کالجز میں لاہور کے اندر، جس میں کپس اور پنجاب کالج جو ہے وہ سر فہرست ہیں. کپس میں نے 3 سال پڑھایا ہے، پنجاب کالج میں نے 13 سال پڑھایا ہے اسلامک سٹڈیز کے لیکچر کے طور پر. اور ریسنٹلی میں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہمارے ٹاؤن شپ میں ہے اس میں اسلامیات کی کلاسز لے رہا ہوں. میرے لیکچرز ہیں وہاں پر ہے ایز وزٹنگ. وہ تقریباً سارے وزٹنگ پہ رکھتے ہیں، پرماننٹ نہیں وہ رکھتے، یونیورسٹی کے لیول پہ پرماننٹ ہے. بیسک تعلق میرا شیخوپورہ سے ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی 2 ذیلی تنظیمات میں نے مختلف اوقات میں کام کیا. اہل حدیث یوتھ فورس میں 5 سال مرکزی قیادت کے طور پر سیکرٹری جنرل کے طور پر رہا ہوں. اور ہماری ایک جماعت ہے جمعیت اساتذہ پاکستان، ریسنٹلی میں اس کا 6 سال تک صدر رہا ہوں. ہمارے ہاں اصول یہ ہوتا ہے کہ 2 ٹینورز کے بعد آپ کو پینل کو چینج ہونا ہوتا ہے، یعنی یہ مرکزی قیادت نومینیٹ کر دیتی ہے. تو ہمیں انہوں نے ذرا زیادہ ذمہ داری دی 6 سال تک، یعنی 3 ٹینور تک ہمیں رکھا. پھر اس کے بعد یہ ابھی انشاءاللہ ایجنڈا جو ہمیں ڈسکس ہوگا انعام القرآن کا، یہ بہت ضروری تھا میرے لیے. ہم سمجھتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، ایک انسان کی ترتیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ترتیب میں تو ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ہم چلے جائیں، لیکن جو انسانی زندگی کی ترتیب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا کم از کم یہ کہ سیکنڈ لاسٹ فیز تو ضرور شروع ہو گیا. اور میں نے ہاف لائف جو ہے میں نے جماعت کو دی 97 سے لے کر آنورڈ 21 تک. اس کا مطلب ہے کہ کو تقریباً 25 سال میں نے جماعت کو دی ہیں. اب اگر زندگی رہی تو میرا ارادہ ہے کہ یہ جو آخری سیکنڈ فیز ہے انشاءاللہ میں اللہ کے قرآن کے لیے یہ ضرور وقف کروں. میرا نام محمد اشرف طاہر ہے اور میں ڈسٹرکٹ قصور سے بلانگ کرتا ہوں اور لاہور رنگ ٹی وی چینل کو جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہوں. جی ویلکم. میرا نام ڈاکٹر جاوید تنویر سرور ہے اور میں تعلیم نگار ہوں. ماشاء اللہ. میرے چیپل میرا نام ہے، شاکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں اور ایز اے میڈیا ایکسپریس اسلام آباد کا ڈپٹی ایڈیٹر پنجاب. اور سیرت کی کتابیں قریب انشاءاللہ میری آ رہی ہے. سیرت نگار ہوں، قلم نگار ہوں، رائٹر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ. ویلکم. فضل حسین عوام ڈیلی پاکستان میں قلم نگار. ویلکم. خوش ویلکم. سعودی ٹور سبق سے پریس کر رہا ہے.
राइवेंट, वेलकम जी, वेलकम। इमरान हमीद नाम है मेरा और बड़ा अच्छा लगा मेरा भी ताल्लुक शेखपुरा से। हाँ जी जी, मैं नॉइवल में रहा सर वेलकम। जफ़र इकबाल जफ़र कॉलमिस्ट हूँ, फीचर राइटर हूँ और इसके साथ इंडियन पंजाब के अखबारों में गुड, मोहम्मद खुर्रम अली प्रेस मैनेजर 2007 पाकिस्तान। वेलकम सर। इसके अलावा मेरा काम है बेसिक कंपोजिंग करके हम तफसीर और काम करते तरह अच्छा माशा, और इदारा मकतबा रहमानिया से मेरा पता अच्छा उर्दू बाजार, उर्दू बाजार से। और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 36 साल से मैं पुराने पब्लिक तकरीबन से काम कर रहा हूँ। हमारा सारा सेटिंग पर काम कर रहा है। माशा माशा, वेलकम जी। सही नज़ारी है। तो मैं उर्दू पॉइंट्स में लिखता है तो लीनियर से भी वाबस्ता हूँ। उनको 25 साल से साफर के समय से वेलकम सर। मेरा नाम रिजवान रफीक बाजवा है। मैं न्यू न्यूज़ लाहौर में करता हूँ, मुख्तलिफ अखबारात में, वेबसाइट में मैं लिखता भी हूँ। एक तंजीम मैंने वेलफेयर की बनाई हुई है, रोशन साहब वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, वेलकम, उसको भी वेलकम। शान मंजूर नाम है मेरा और शेख अतीकुल्लाह अमर साहब इनके साथ पायलट भी हूँ और इनके भाई भी हूँ। ऑफिस की खिदमत भी कर रहे हैं हम लोग। जी 25 साल से सहाफ़त में हूँ जी। अकील अंजुम अवान मेरा नाम है और आजकल जहान पाकिस्तान में मैगजीन में वेलकम सर। एहसानुल हक एडवोकेट मेरा नाम है और डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर मैं शोज करता हूँ। साइबर लॉज और जो पॉलिटिक्स होते हैं उनके ऊपर हाई कोर्ट यूथ अफेयर्स कमेटी का मैं यंगेस्ट चेयरमैन रहा हूँ। नेक्स्ट यूथ असम्बली का यूथ मिनिस्टर रहा हूँ और मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर्स में कॉलम भी लिखता हूँ और साइबर लॉज और डिफरेंट जो सोसाइटी के अंदर वोटिंग्स होते हैं उनको हाईलाइट भी करता हूँ। वेलकम। सब दोस्तों का एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया जी, और आप सब लोगों को वेलकम। आप हमारी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए। मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ इमदाद इलाही साहब का, जिन्होंने आप हम सबको मिल बैठने का मौका दिया है। जैसा आप देख रहे हैं कि आज की हमारी मुलाकात जो है ये इनामुल कुरान ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम है। मेरा ख्याल है कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये कुरान पाक के हवाले से एक ट्रस्ट हमने कायम किया है। अभी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है, अप्लाई मैंने किया हुआ है। उम्मीद है इंशाल्लाह रमजान मुबारक में हमें रजिस्ट्रेशन करना वो मिल जाएगी। ये काम जस्ट प्रैक्टिकल अगर कहा जाए तो सिर्फ 3 माह से शुरू हुआ है। वैसे मैंने पिछले साल भी ट्राई किया था रमजान में, बट रजिस्ट्रेशन हमें मिल सकी, कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज थे तो हम इसको कैरी नहीं कर सके। असल मसला ये है कि इंसानों के जितने भी मसाइल हैं, आप उसको सियासी कहें, मुआशी कहें, समाजी कहें, कानूनी कहें, अखलाकी कहें, मजहबी कहें, मेरे ख्याल के मुताबिक उनका एक हल जो है, यानी सारे मसाइल का एक हल जो है वो तालीम है, एजुकेशन है। और इसकी सबसे बड़ी दलील हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती है कि जब आप तशरीफ लाए थे उस वक्त हर किस्म के मसाइल थे। यानी हम आज तक यही पढ़ते सुनते आए हैं कि बहुत बड़ी गुमराही थी और इंसानियत नाम की ही चीज कोई नहीं थी। कुरान पाक ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि इतना अंधेरा था कि इंसान अपना हाथ देखना चाहता तो नहीं देख सकता था। मतलब क्या? मतलब ये कि इंसान को अपनी शनाख्त भी नहीं थी, कहता कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, सब कुछ उसका खत्म हो चुका था। आपको पता है कि हाथ आज तक दुनिया में पहचान की एक अलामत है, शनाख्त की एक अलामत। और ये एग्जाम्पल कुरान पाक ने दी। उन सारे मसाइल के हल के लिए इस्लाम ने क्या किया? एक लफ्ज में इस्लाम ने हल पेश कर दिया, और वो ये था कि इकरा, पढ़ो। पढ़ोगे तो शऊर आएगा, पढ़ोगे तो आपको इंसानियत की समझ आएगी, पढ़ोगे तो आप बढ़ोगे। दुनिया का कोई मामला ऐसा नहीं जिसमें तालीम से हट के हम चल सकते हैं। अच्छा, इंसानों की तारीख की भी गवाही यही है, और मेरा ख्याल है बरसगीर लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को तो इस बात का बड़ा तलख अंदाजा है कि तालीम और टीचर और उस्ताद और नसाब, इसका बहुत बड़ा किरदार है। ये चाहे तो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को अलग-अलग कर दे, और ये चाहे तो आपको यूनाइट कर दे। ये तालीम एक ऐसा इशू है जिसकी बुनियाद पे सारे के सारे मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। अब इत्तेफाक देखें, बल्कि मेरा ख्याल है ये इत्तेफाक नहीं था, ये प्री प्लान था अल्लाह ताला की तरफ से कि 5 आयात नाज़िल होती हैं पहली वही में, और पांचों की पांचों तालीम से रिलेटेड है।
यानी पूरा एजेंडा अगर हम पैकेज पूरा कहें तो वो तालीम का पैकेज था। उसमें आपको तालीम की अहमियत भी बताएगी, तालीम का नसाब भी बताएगा, तालीम का तरीका भी बताएगा, ये सारी चीजें उसमें आ जाती। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल की बेहतरीन जिद्दोजहद को एक नाम से याद करना चाहूं कि आपने क्या इनकलाब बर्पा किया, क्या वो इनकलाब सियासी था, क्या वो इनकलाब अखलाकी था, क्या वो इनकलाब समाजी था, क्या वो इनकलाब कानूनी था? नहीं, मैं सारे के सारी बात को शायद इस बात में कह सकता हूं तो वो एक तालीमी इनकलाब था। यानी आपने एक शऊर दिया था लोगों को। और फिर उसके बाद इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है, मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि जिसने 100% लिटरेसी रेट का पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया है। अब देखिए ना, जब इस्लाम ये कहता है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, पहली बात तो ये साबित होगी कि ये फर्ज है, तालीम हर एक के लिए फर्ज है। और दूसरी बात ये साबित हुई कि अला कुल का जो लफ्ज है, कुल सबके लिए बोला जाता ना, तो मतलब ये है कि 100% आपके लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, इसमें कोई लिटरेसी रेट में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और फिर आप आज दुनिया में देखें लिटरेसी रेट में वो कहां है, और जो लोग जितना जितना तालीम में पीछे हैं उतना उतना वो तरक्की में पीछे हैं। और मैं इस बुनियाद पे क्लेम कर सकता हूं कि हिस्ट्री के अंदर कोई एक मुल्क, कोई एक मुआशरा, कोई एक कौम या कोई एक जो ना मजहब, वो आप मुझे ऐसा दिखा दे जिन्होंने बगैर तालीम के तरक्की की, मुमकिन ही नहीं है। ये मेरी गुफ्तगू में पहली बात होगी। दूसरी दरखास्त ये है, अब इल्म कहां पे है? इल्म तो बेशुमार किस्म का इल्म है दुनिया के अंदर। ये खामखा के हमने डिवीजन की हुई है कि ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। इल्म तो सारा इल्म है, ठीक है। आप देखें ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी इल्म के लिए आए थे ना, लेकिन उन्होंने बदर के मौका पर क्या कहा था कि भी हमारे बच्चों को काफिर पढ़ना लिखना सिखाएंगे। अब सोचिए कि काफिर उनको क्या पढ़ना लिखना, कुरान सिखाएंगे? क्या उनको हदीस सिखानी थी उन्होंने? नहीं, उन दुनिया के इल्म सिखाना था। इसका मतलब यह है कि इस्लाम के नजदीक दीन और दुनिया के उलूम की जो डिवीजन हमने की है ये इनसेपरेबल है। ये हमारी आर्टिफिशियल एक गैप हमने क्रिएट किया हुआ है, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये कॉन्शियसली किया गया है कुछ कौमों की तरफ से, जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा हमारे सामने, ताकि हमारी ये डिवीजन सोसाइटी के अंदर आ सके। और आज एक क्लियर डिवीजन है। वो डिवीजन क्या है? डिवीजन ये है कि दीन वालों को दुनिया का नहीं पता, बड़ी माजरत के साथ। मैं चूंकि उस फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, मेरा 4 चफेरे हम दीनी लोगों के अंदर रहते हैं, वो दुनिया से नाबाल्द है। और मुझे ये भी तजर्बा है कि दुनिया वाले लोग दीन से नाबाल्द हैं। अभी मैंने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम लिया, मैं पिछले 1-2 हफ्तों से पहले मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में, मेरे पास 5 क्लासेज हैं, 300 के करीब स्टूडेंट को मैं रोजाना पढ़ाता हूं। मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा बेटा आप आइए, कोई एक बच्चा खड़ा हो और बोर्ड पे आके पहला कलमा लिखिए और उसका तर्जमा लिखिए। यू विल एस्टोनिश टू नो, एस्टोनिश से भी आगे बात है, ये तकलीफ दे बात है कि 300 बच्चों में से 3 ने क्लेम किया कि मैं लिखूंगा, और उसमें भी 2 ने गलत लिखा, सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी हमने सोचा कि हम किधर जा रहे हैं? एक मुसलमान जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा विजनरी पर्सन होता है, यानी उससे बुलंद किसी बंदे की सोच हो सकती है जिसने पहला दिन टारगेट ही जन्नत है। एक बंदे का टारगेट बहरिया टाउन है, एक बंदे का टारगेट कोई विला है, एक बंदे का टारगेट जो है वो किसी मुल्क में जाना है, एक बंदे का टारगेट दुनिया में कोई कारोबार की सेटिंग है, एक बंदे का टारगेट पहले दिन ही अल्लाह से मुलाकात है और जन्नत है। मैं नहीं समझता उससे ज्यादा कोई विजनरी आदमी हो सकता है। बट अनलकीली हमारे जो मजहबी लोग हैं, इन्होंने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये गलती की है और ये जुल्म किया है कि हमारी कौम को बहुत महदूद कर दिया है। मैं कल ही बहावलपुर में रात था, मैं वहां एक बात मैं कर रहा था कि कभी आपने सोचा कि कितने लोगों को हम दीन सिखा रहे? सर जस्ट 1%। आपकी नजर हमसे बहुत तेज है अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में। आप देखिए कि मस्जिद और मदरसे में कितने लोग आते हैं। इस सारे शहर के मदरसे इकट्ठे कर लें, मेरा ख्याल है एक भी कॉलेज या स्कूल के सिस्टम के उसके बच्चे जो है उनसे ज्यादा होंगे। हमारा पंजाब कॉलेज इस वक्त जिसमें मैं पढ़ाता रहूं, वो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट लेके बैठा हुआ है। आप समझते हैं कि 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट किसी मदरसे में या किसी मदरसे की चेन में है या किसी मसलक के पास है, अहले हदीस के पास हो, बरेलवी के पास हो, देवबंदी के पास हो, 2 लाख तो नहीं बनते ना। तो हमारे यहाँ ये जो मामला है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि तालीम इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि तालीम का जो मरकज है वो कुरान है और हदीस, दुनिया और दीन की तालीम ये बिल्कुल इनसेपरेबल है, ये इकट्ठी चलेगी। और हमें पता होना, देखिए ना
इस्लाम ने क्या कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अब अपने रब के नाम से मैं कहता होता हूं ये दीनी तालीम है, ठीक हो गया। आगे क्या है, अल्लाज़ी खलक, खलक क्या है, क्रिएशन है, इनोवेशन है, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है, थ्योरीज है, ये सारे का सारा पूरे जहान का इल्म अल्लाज़ी खलक में आता है, क्योंकि ये सारी कायनात अल्लाह ने पैदा किया। और इसके साथ ही जुड़ा मैं एक और भी जिम्मेदारी से ये क्लेम करता हूं कि आप सर नाम लें दुनिया के किसी इल्म का, अल्लाह की तौफीक से मैं आपको साबित करूंगा ये कुरान पाक में मौजूद है। सर आज से 800 साल पहले की एक रिसर्च है, कानून तावील के नाम से किताब लिखी गई, तो उसमें बताया गया था 77,450 उलूम, 70,450 उलूम कुरान पाक से डिराइव किए गए। अब हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप उनको सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप उनको कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनको बैंकिंग पढ़ा रहे हैं, आप उनको आईटी पढ़ा रहे हैं, आप उनको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, आप उनको मैथमेटिक्स मदर ऑफ साइंसेज है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, बट आपने बेस तो पढ़ाई नहीं। मैं साबित कर सकता हूं अल्लाह की तौफीक से, हम ये क्लेम करते हैं अल्लाह की तौफीक से कि कुरान पाक मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी किताब है, केमिस्ट्री की सबसे बड़ी किताब कुरान पाक है। क्या ये बात लोगों को पता नहीं है कि न्यूटन के 3 लॉज जो है वो सारे के सारे कुरान पाक से लिए गए? क्या लोगों को ये मालूम नहीं है कि बायोलॉजिकल साइंस की सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद है? क्या लोगों को इस बात का पता नहीं है कि केमिस्ट्री की सारी बुनियादें कुरान ने दी हैं? हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बताते? हम अपने बच्चों को दूसरों का लिखा हुआ तो पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर सोच क्या है? हमारे बच्चों के अंदर आज सोच ये पैदा कर दी गई है कि शायद सब कुछ हमें अंग्रेज ने दिया है, अंग्रेज ने हमसे लिया है। डॉक्टर तारिक कादरी साहब की एक बड़ी अच्छी किताब है इस्लाम का तारीखी और साइंसी मुताला, कभी आप उस किताब को पढ़ के देखें, उसमें उन्होंने बादलाइल ये साबित किया है कि जितने भी ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर उलूम है ये मुसलमानों से लिए गए। उन्होंने किया क्या है, उन्होंने हमारे साथ एक बहुत बड़ी बेईमानी की है। उन्होंने हमें ये तो बच्चे को याद करवा दिया कि आइजैक न्यूटन ने ये काम किया था, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ये आइजैक न्यूटन नहीं था, ये इसहाक अल-कंदी था, ये मुसलमान था और उसने ये काम किया। उन लोगों को ये नहीं बताया कि आपकी मैथमेटिक्स की बुनियाद मोहम्मद मूसा अल-खवारिज़मी ने रखी है, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये इब्नुल हसन ने रखी है। अब हमारा काम सिर्फ उलूम देना नहीं, हमारा काम अपने बच्चों को अपनी हिस्ट्री पढ़ाना भी है, हमारे बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा भी करना है कि बेटा ये सारी आपकी निराश है। और ये भी हम नहीं कहते, मैं जब इस्लाम का लफ्ज बोलता हूं, मैं क्लियरली आपके सामने कहना चाहता हूं, जब मैं इस्लाम का लफ्ज बोलता हूं तो इस्लाम से मुराद मेरी सारे आसमानी मज़ाहिब है। क्रिश्चियनिटी भी उसमें आती है, उसमें जूइज्म भी आता है, उसमें तौरात भी आती है, इंजील भी आती है, ये सारे का सारा इस्लाम ही है। यानी अल्लाह को जो नाजिल करता दीन है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे का सारा एक है। बेशक नाम उसका कभी मूसा पड़ गया हो, नाम उसका कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत पड़ गया हो, नाम उसका क्रिश्चियनिटी रख लिया गया हो, नाम उसका जो है वो जियोज्म। अच्छा, इसका फायदा हमें सोसाइटी में क्या होगा? इसका फायदा हमें सोसाइटी में ये होगा कि हमारे बच्चे की सोच वसी होगी, उसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। और ये जो हम छोटी छोटी बातों पे लड़ते फिरते हैं ना, फिर वो लड़ाइयां हमारे अंदर नहीं होगी। ये जो हम एक दूसरे को बमों से उड़ा रहे हैं ना, फिर ये काम नहीं होगा। जब मुझे पता होगा कि ईसाई मेरा भाई है, जब मुझे पता होगा कि जूइज्म भी वही है जो मैं कह रहा हूं, जो ओरिजिनल और रियल जूइज्म है वो भी वही है, तो फिर मैं उनसे नफरत नहीं कर सकता, फिर मैं ये दहशतगर्दी नहीं कर सकता। फिर मेरे नजदीक ये बात, फिर मेरा इस्लाम मुझे सिखाएगा कि जो इस्लाम कीड़े मकोड़े को मारने से रोकता है आपको, वो एक इंसान को कत्ल करने की कैसे इजाजत देगा? जिस इस्लाम ने 87 जंगों में सिर्फ और सिर्फ 1000 के करीब लोगों को जो ना वो कत्ल हुए हैं या शहीद हुए, वो इस्लाम आपको कैसे इजाजत देगा कि आप अपने जिस्म के साथ बम बांधे और जाके जो है ना, वो इस्लाम आपको ये कहता है कि आपके हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो इस्लाम आपको कैसे इजाजत देगा कि आप बम बांध के सारे नमाजियों को उड़ा दें? नंबर 2 ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इंटरसेक्स जो है, हमारे जो मसालिक है, इनकी जो नफरत है, मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की रिसर्च है सर, ये वहां का एक बाकायदा जो ना थीसिस है। 97% हमारे दरमियान सिमिलरिटीज हैं, 3% हमारे दरमियान डिफरेंसेस है। मुझे आप बताइए ना, क्या हमारा कलमा एक नहीं है? क्या हम सब नहीं कहते कि नमाजें 5 पढ़नी चाहिए? क्या हमारे सारे नमाजों की तादाद पे जो ना वो कोई इख्तिलाफ है? क्या हम में से किसी का इख्तिलाफ है कि जुमा बरकत वाला दिन नहीं है? क्या किसी का इख्तिलाफ है कि जिंदगी में एक मरतबा हज नहीं होना चाहिए? क्या किसी का इख्तिलाफ है कि ज़कात की रेशो 2.5% है? क्या किसी का इख्तिलाफ है कि यही कुरान हमारी किताब है? क्या किसी का इख्तिलाफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी रसूल? यानी मैं अपने जो इंटरसेक्ट की बात कर रहा हूँ, हमारे मसाले के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। आखिर वजह क्या है कि यहाँ पे कभी वहाबी बरेलवी की लड़ाई करवाई जाती है, यहाँ पे कहीं शिया सुन्नी की लड़ाई करवाई जाती है, यहाँ पे देवबंदी और शिया की लड़ाई करवाई जाती है। ये हो क्या रहा है हमारे साथ?
मेरे ख्याल के मुताबिक, और आपने अब तो ये यहूदी प्रोटोकॉल्स जो है जो दुनिया वालों ने तैयार किए हैं, मेरा ख्याल उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी आ गया, नेट पे भी पड़ा हुआ है, आप उसको पढ़ के कभी देखिए। ये सारी की सारी साजिशें हमारा दुश्मन हमसे कर रहा है। इस माशरे को डिवाइड कैसे किया जा सकता है? इसको मिस्टर और मौलवी से डिवाइड किया जा सकता है, इस माशरे को पॉलिटिकल डिवाइड किया जा सकता है, इस माशरे को मजहब के नाम पे डिवाइड किया जा सकता है। इस माशरे को डिवाइड करके फिर हम क्या करते हैं, तरतीब उनकी देखिए जरा, वो मुखालफत, वो इख्तलाफ को मुखालफत बनाते, मुखालफत को गाली बनाते, गाली को गोली बनाते, गोली को बम बना देते। ये सारे का सारा प्री प्लान्ड एजेंडा है। हम अपनी कौम को, और सबसे ज्यादा उसमें रोल किसका होगा? स्टूडेंट का होगा। हम उसको ये सिखाएंगे कि मेरा बेटा आप सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक अल्लाह के मानने वाले हैं। इस्लाम ने तो, आप यकीनन जानते होंगे, इस्लाम ने जिस दौर में इस्लाम आया था, यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ ठीक ठाक चपगलश थी, लेकिन उस मौका पर इस्लाम ने कहा था तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आइए एक बात पे इकट्ठे हो जाते हैं जो आपके हमारे दरमियान एक है। जो इस्लाम इतनी ब्रॉड सेंस है, क्या आप हम नहीं जानते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को, क्रिश्चियंस लोगों को मस्जिद नबवी के अंदर इबादत करने का मौका दिया था? आज हम सोच सकते हैं, हम तो बरेलवी को बर्दाश्त नहीं करते, हम तो देवबंदी को बर्दाश्त नहीं करते, हमारी मस्जिद में कोई शिया मसलक का बंदा आ जाए, हम उसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। आखिर ये तालीम हमें क्यों नहीं दी गई? मैं बड़ी ईमानदारी से जानता हूं, जो हमारे ट्रस्ट की तरफ बात आएगी, इस वजह से नहीं दी गई कि हमारे लोगों को कुरान का पता नहीं। हमने लोगों को कुरान सुनाया है, मेरे जुमले पे जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे माटो के अंदर शामिल है। हमने लोगों को कुरान सुनाया है, आवाजों में सुना दिया, किरात में सुना दिया, मौलवी साहब ने सारी रात तकरीर कर दी, ये जनाब कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये जनाब इज्तिमा हो रहा है, ये फलां हो रहा है, लेकिन हमने लोगों को कुरान सिखाया नहीं। और मुझे कभी कभी ये लगता है शायद ये कॉन्शियसली किया गया। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर हमने समझे नहीं कि अल्लाह में क्या रहे, क्या हम तो उसको तलावत के तौर पर ले रहे हैं ना, जब तक उसको तर्जुमे में नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुरान का कैसे पता चलेगा? मैं आपको इसको क्लियर एविडेंस देता जी। ये इस लास्ट वीकेंड पे मैं हरिपुर में था, हरिपुर में मैं एक मौलवी साहब को कहा, मैंने कहा सर अवाम को आपने कुरान सिखाया क्यों नहीं है? सर ये हर रोज सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इनमें से कितने लोग हैं जिनको सूरह फातिहा का तर्जुमा आता है? ये हर रोज कहते हैं सुभान रब्बियल आला, कितने लोगों को सुभान रब्बियल आला का माना पता है? अच्छा, जब मैंने उनसे बातें की, आप सोच सुने, हमारी जो बरादरी है उसकी सोच सुने, मुझे साइड पे करके कहने लगे जी मैं ना जो कुरान सिखा देते थे तो मेरे उस्ताद बन जाएंगे। कॉन्शियसली किया जा रहा है, कॉन्शियसली किया जा रहा है कि इन लोगों के अंदर ये चीज ना आए। हालांकि मैं कह चुका हूं इस मसले से फिरका वारियत भी खत्म होगी, कुरान सिखाने से इंशाल्लाह दहशतगर्दी भी खत्म होगी। कुरान सिखाने से हमारे मुआशरे में इस वक्त सबसे बड़ी कमी, मेरा ख्याल आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, सबसे बड़ी कमी हमारे मुआशरे में किसी भी पहलू को ले बर्दाश्त किए, हम एक दूसरे को कबूल ही नहीं कर रहे। आप मेरे से लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन मैं आपकी बात का एहतराम तो करूं ना। वो हमारे एक टीचर थे, बड़ी खूबसूरत बात करते होते थे, वो कहते थे मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं आपकी बात का एहतराम करता हूं। वो खत्म हो गया, बर्दाश्त खत्म हो गई, और उसी वजह से ये सारे मसाले हमारे माशरे के अंदर चल रहे हैं। तो इस एतबार से हमने इनामुल कुरान के प्लेटफॉर्म पे जो सबसे बेसिक हमारा मकसद है वो ये है कि लोगों को कुरान सिखाओ। सर हमने नूरानी कायदे से काम स्टार्ट किया है। सबसे पहले लोगों को, आप हैरान हो गए कि मैं क्या बात कर रहा हूं, लोगों को नूरानी कायदे ही ठीक नहीं पढ़ाया गया, हमारे बच्चों को बुनियाद ही नहीं दी गई। फिर हम आते हैं उसके बाद कुरान पाक के दुरुस्त उलूम पढ़ने पे, उसूल पढ़ने पे, ये एक हमारा किताबचा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम आते हैं कुरान पाक के तर्जमे के उसूल। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर हम आते हैं कुरान पाक का तर्जुमा सिर्फ 40 दिनों में। ये जो इनामुल कुरान है, इसी की बुनियाद पे हमने एक इनामुल कुरान के नाम से किताब लिखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब के जरिए जस्ट इन 40 लेक्चर्स हमने कुरान पाक को पूरा पढ़ने का, मैं इमदाद भाई से कहूंगा आप तमाम दोस्तों तक कुछ तक पहुंचाई भी हैं और बाकियों तक इंशाल्लाह वो पहुंचा देंगे, वो किताब आपको भी गिफ्ट की जाए। उसमें सिर्फ 40 लेक्चर्स में पूरे कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने का टेक्निकल तरीका बताया गया। मसलन ये बात हमारे लिए हैरान कन होगी कि कुरान पाक का 33% उर्दू में है। आप हैरान हो, नबी, रसूल, जन्नत, जहन्नम, किताब, आखिरत, मौत, ये सब उर्दू, इवन हमारे पंजाबी में यूज होते हैं ये अल्फाज, ये सारे अल्फाज, यानी 33% कुरान तो हर बंदा जानता है। नंबर 2, हमने कुरान पाक के हुरूफ अलग किए हैं, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है ना, वो उसकी आपने अक्सर ने कोई ग्रामर मुख्तलिफ ज़बानों की पढ़ी होगी, वो 3 चीजों पे बेस करती है, या लेटर्स होते हैं, या उसके वर्ड्स होते हैं, या उसके वर्ब्स होते हैं। हमने इसी 3 की तकसीम में उसको रखा है। लेटर्स जो हैं कुरान पाक में 18,000 हुरूफ हैं, एंड यू विल एस्टोनिश एंड हैप्पी टू नो कि सिर्फ 70 हुरूफ है सर,
اگر میں وہ 70 حروف یاد کر لیتا ہوں مجھے 18,000 حروف قرآن پاک کے یاد ہو جاتے ہیں. وہ ہم نے وہ لکھی ایک چیپٹر میں. دوسرے چیپٹر میں ہم نے کیا کیا, قرآن پاک کے جو ورڈز ہیں, جو الفاظ ہیں, پیور عربی الفاظ ہیں, وہ صرف اور صرف آپ 77 ہم نے کتاب میں لکھے. 277 اگر آپ یاد کرتے ہیں نا تو آپ قرآن پاک کے 35,000 الفاظ یاد کر لیتے ہیں. ہم نے وہ لفظ لکھا ہے, ہم نے اس کا ترجمہ لکھا ہے, ہم نے اس کی تعداد لکھی ہے, ہم نے اس کی ایگزامپل دی ہے, ہم نے اس کی ٹرانسلیشن دی ہے. یعنی اس طرح سے 40 لیکچرز میں اسٹوڈنٹ کو, عام آدمی کو ہم قرآن پاک سکھا سکتے ہیں. اور آخر میں تیسری بات ورب کی رہ سکتی ہے, وہ صرف 200 ورب آپ یاد کر لیں. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ 200 الفاظ یاد کر لیں. 200 الفاظ اگر آپ یاد کریں گے تو آپ قرآن پاک کے 25,000 الفاظ کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں. آج کا ایشو کیا ہے؟ آج کا ایشو ہے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. میں امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ لوگ مدرسے میں آئیں گے. سر نہیں آئیں گے, چونکہ معذرت کے ساتھ میرے مدرسے نے اس کو فیوچر نہیں دیا. میرے مدرسے نے, میں مدرسے کے بڑے لکھا ہوں, میرے والد صاحب مدرسے کے بڑے لکھے تھے, ہماری برادری ساری مدرسے کے بڑے لکھی ہے, اس لیے میں مدرسوں کے خلاف نہیں ہوں. لیکن کیا مدارس نے وقت کی آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے؟ کیا وقت کے قدم کے ساتھ قدم ملایا؟ ہم 1723 کا نصاب آج بھی پڑھا رہے. وہ نظام الدین ملا نے جو لکھا تھا وہی درس نظامی آج ہم پڑھا رہے. ہم کیوں نہیں چینج ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ؟ سارے یہ کپڑا بنانے والا چینج ہو گیا, اس نے دیکھا کہ اس چیز کا رواج ختم ہو گیا, اس کو ختم کر دو. ہم نہیں چینج ہوئے, ہم نہیں چینج ہوئے. یہ معمولی سی ماچس کی ڈبی بنانے والا چینج ہو گیا کہ بھئی اس چیز کی اب ضرورت نہیں, اب اس کو نیا سٹائل دینا ہے. جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے, جب آپ کمپٹیشن میں جائیں گے تو آپ کو انوویشن تو لانی پڑے گی. ہمارا دشمن کہاں سے کہاں چلا گیا؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ وہ کتنی ریسرچ کرتا ہے؟ میں تو ایک عجیب بات آپ سے کرنے لگا ہوں. میں اپنے سپیچز میں, پبلک سپیچز میں کہتا ہوں کاش ہم قرآن پاک کو اتنا پڑھیں جتنا انگریز پڑھتا ہے. سر اس کی ریسرچ ہم سے زیادہ ہے, اس کی ریسرچ ہم سے زیادہ ہے. ہم نے قرآن میں یہ کہا وانزلنا الحدید فیہ باس للناس شدید و منافع للناس. لوہے ایک ایسی چیز ہے جو بہت مضبوط ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بہت پروفٹ ہے. سر انگریز یہاں رک گیا. انگریز نے ریبل سے لے کر ہیلی کاپٹر تک یہاں سے بنا دیا. اس کو پتا تھا لوہے سے سارا کام ہونا ہے. ہم نے سے اس کو پڑھا, چوما, دم کیا, درود پڑھا, اور ہم جی برکت لے کے, جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جس صرف ہم نے اس کو تلاوت کیا تک رکھا. ہم لوگوں کو طوطے بنا رہے ہیں. ہمارے آدمی ساری رات آپ کو قرآن سنا سکتا ہے. سر آپ تو بات کر رہے ہیں نا عوام الناس کی, میں بات کرتا ہوں حافظ قرآن کی, میں بات کرتا ہوں قاری صاحب کی. انہوں نے ساری رات تلاوت کی, آپ ان سے بیٹھ کے کہ سر اس کا ترجمہ بتا دیں. آئی ایم سوری ٹو سے, ان کو خود نہیں آتا. ہمارے کتنے مسجدوں کے امام ایسے ہیں, ہماری مسجدوں کے کتنے امام ایسے جن کو ترجمہ آتا ہے. آپ اگر اپنی اپنی جگہ جا کے آج ہی جا کے ریسرچ کریں گے نا, آپ قرآن پاک پکڑیے اور کھولیے, سر اس کا ترجمہ بتا دیں. میرا خیال ہے شاید کوئی 10% لوگ آپ کو ملیں گے جن کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی آتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ نورانی قاعدے سے لے کے تفسیر القرآن تک. اچھا میں بات کر رہا تھا وقت کی. وقت ہمارے پاس نہیں ہے. میں نہیں کہہ سکتا, میں نے ایک دوست سے پوچھا جی آپ قرآن پاک یونیورسٹی میں سکھا رہے ہیں؟ ہاں سکھا رہے ہیں. میں نے کہا جی کیسے سکھا رہے ہیں؟ میں نے جی الحمدللہ 7 سالوں میں ان کو 18 سپارے پڑھا دیے. میں کہا سر 7 سالوں میں 18 سپارے آپ پڑھائیں گے؟ پورے قرآن پہ تو آپ کے 30 سال لگ جائیں گے. 30 سال آپ کے پاس کون اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے؟ 2 سال میں آپ کا پروگرام چینج ہوتا ہے, اگلا اسٹوڈنٹ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر آپ ان کو 40 دنوں میں پڑھائیں. اور کون سا مسلمان ایسا ہے, میں نے فیلڈ میں جا کے ریسرچ کیا, کون سا مسلمان ایسا ہے جس کو آپ کہیں گے میں 40 دنوں میں آپ کو قرآن سکھاتا ہوں اور وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا؟ کون سے ماں باپ ایسے ہیں جن کو آپ کہیں گے اپنے بیٹے کو صرف اتوار کے دن 1 گھنٹہ میرے پاس بھیج دیا کریں, اگلے سال اپنے بچے کو سارا قرآن آئے گا ترجمے کے ساتھ آئے؟ کون نہیں بھیجے. ہم نے تفسیر قرآن کی کتاب تیار کر رہے ہیں, اس وقت بھی پرنٹنگ کے مراحل میں ہے, جس میں ہم نے صرف 250 پیجز میں 250 پیجز میں الحمدللہ ہم نے پورے قرآن کی تفسیر لکھ دی ہے. آپ نے ہر ایک کو عالم تھوڑا بنانا ہے, آپ نے ہر ایک کو ٹیکنیکل بتانی ہے. ہمارے ہاں تو جو علماء کا کام ہے وہ کرے, ایک لفظ پہ سال بحث کریں, ان کا فیلڈ ہے, وہ اس کے ایکسپرٹ ہے. بٹ عوام الناس کا کیا ضرورت ہے؟ عوام الناس کی ضرورت یہ ہے 40 دنوں میں ان کو قرآن پاک کا ترجمہ مل جائے, 30 دنوں میں ان کو قرآن پڑھنے کے اصول آ جائے, 30 دنوں میں ان کو قرآن پاک 20 دنوں میں, یہ ہم نے جو بک لکھی ہے 20 دنوں میں ان کو قرآن پاک کے ترجمے کے سارے اصول آ جائیں. آپ سر ان کو صرف اور صرف 1 مہینہ 1.5 مہینے کے اندر یعنی 50 ڈیز میں آپ ان کو پورے قرآن پاک کی تفسیر پڑھا سکتے ہیں. ہم یہ کلیم کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ آپ 5 صفحات چھوٹے سائز کے ڈیلی پڑھ لیجئے, آپ کو انشاءاللہ 50 دن کے اندر پورے قرآن پاک کی تفسیر آ جائے گی. اچھا اس میں اور جو آخری بات, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں نے یہ دیکھا ہے الحمدللہ کہ ہمارے ہاں اس وقت پیاس بہت ہے. ابھی میں 3 ہفتے پہلے میں سندھ تھا, اندرون سندھ میں اور کراچی میں. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ لوگ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے, خدا واسطے آ کے ہمارے بچوں کو قرآن سکھا دو.
हमने लोगों के मकान बचाए। ये मेरा जुमला जरा इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए। हमने लोगों के मकान बचाए, हमने लोगों की जान बचाई, वेल डन। बट हमने लोगों का ईमान नहीं बचाया सर। कितने लोगों को फिक्र है कि इनका ईमान भी बचाओ। ये मेरी जिंदगी जो मकान के अंदर रहनी है, ये तो 50 से तो 60 साल की हो जाएगी, बड़ी छलांग लगाएंगे तो 70 साल की हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत की एवरेज उम्र 60 साल होगी, और वो हम देख रहे हैं सारा। अच्छा, अब मैंने उस जगह का इंतजाम तो कर दिया है जहां उसने 60 साल रहना है, मैंने उस जगह का इंतजाम क्यों नहीं किया जहां उसने हमेशा रहना? टेक्निकली भी आप सोचें तो उसको जरूरत उस बात की ज्यादा है। मैं उस बातों की मुखालफत नहीं कर रहा। आप मकान बनाइए, आप उनके बिस्तर का एहतमाम कीजिए, आप उनके खाने का एहतमाम कीजिए, वेल डन। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कर रहे हैं। अभी बलोचिस्तान में भी हमने अपने ट्रस्ट के तहत बिस्तर वगैरह भेजे हैं। अभी हम अगला जो कदम है वो तुर्की के हवाले से कर रहे हैं। अगर हमारी कोई अप्रोच बनती है तो हम वहां तक हुकूमत के जरिए बेशक 1000 कंबल जो है ना वहां हम अल्हम्दुलिल्लाह भेज रहे हैं। और इसी तरह हम लोगों को ये सारी की सारी जो किताबें जितनी भी मैंने नूरानी कायदे से लेकर तफसीरुल कुरान बल्कि सियासत तक का, ये सारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हमारा ट्रस्ट जो है इसमें एक पैनी भी चार्ज नहीं करता। हाँ, ये आपको पता है ट्रस्ट काम किस तरह करते हैं, आवाम सीख लेंगे ना। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि मेरी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और मैं ही सारा काम कर रहा हूं, डोनेशन लेंगे। और मैं आपको हैरान कुन बात बता दूं, ये मेरे तजर्बे की बात है। मैंने 26 साल जमात में काम किया सर। आप हैरान कुन ये तज्जिया सुने मेरा कि 26 साल में लोगों ने मुझे इतना फंड नहीं दिया जितना उन्होंने मुझे 3 माह में दिया। डोनेशन दिए हैं। एक एक बंदा कह रहा है सर लाख लाख रुपया मैं देता हूं, आप इसकी किताबें छुपाएं। और हम करते क्या, जो बंदा हमें डोनेशन देता है हम उसी का नाम किताब पे लिख देते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं, ये हमारा बिजनेस नहीं है। हमने कोई राइट महफूज नहीं किया हुआ। हम ओपनली जाके लोगों से कह रहे हैं सर आप छपवा लें, सर आप छपवा लें, नाम अपना लिख रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमारी दरखास्त ये है कि खुदा वास्ते से इस कौम को इतना कुछ पढ़ाते हो, डिग्रियां सारी दिलवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब यूनिवर्सिटी के लेवल तक जा रहे हो, भरे पड़े इदारे, गली गली अकेडमीज है, अच्छी बात है। बच्चों को कुरान क्यों नहीं पढ़ाया? यानी यही मिसाल है कि हम लोगों को अगला दौर तो सारा दिखा रहे हैं, लेकिन जहां से काम स्टार्ट करना था वो हमने बताया। हम अपने बच्चे को क्यों नहीं बताते कि बेटा जितने भी उलूम आप पढ़ेंगे अपनी जिंदगी में उसकी बेस कुरान पाक है। तो ये हमारा मुख्तसर सा एजेंडा जी। हम बच्चियों की शादियां भी करवाते हैं, हम गरीब लोगों को राशन भी देते हैं, वो हमारे ज़ैली काम, यानी वो आ जाते हैं साथ साथ। वो साफ ज़ाहिर जब आपने फील्ड में निकलना है तो फिर सारी हर तरह के लोगों की आपसे डिमांड होगी, वो हम करते हैं। बट हमारा बेसिक माटो, जो बेसिक हमारा इनिशियल जो कदम है वो यही है कि हम इंशाल्लाह लोगों को कुरान सिखाएं। थैंक यू जी।